Shalom, shalom, shalom. Greetings to you in Jesus' wonderful name. Blessed be the name of the King of glory, unto whom we ascribe all the strength, the power, the praise, the glory, and the majesty. Hallelujah. In your name, Lord Jesus, in your blessed name, we gather around your throne right now, Lord. We come to learn of you, Lord. We come to draw closer to you. Lord, we come closer to you so that we may learn your ways, that we may understand your velocity, the way you work. Lord, that you may unravel another facet of your glory to us, and you may reveal the things of the spirit realm to us. Hallelujah. तेरा धन्यवाद हो प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो. हालेलुया. Thank you, Jesus. Jesus, we bless you. Lord Jesus, we bless you. Bless you, Lord. We bless your holy name. Hallelujah. Lord Jesus, we bless your holy name. Hallelujah. अपना मुंह खोल के प्रभु का धन्यवाद करें कुछ पल. Hallelujah. Talk to him and bless him. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. मेरी मदद नु रब पे आया, मेरी मदद नु रब पे आया, जिसने धरती आकाश बनाया, मेरे पैरां नू बख्शे खुलारा, मदद लाई यस्सू नू पुकारा, अखियां चुकना मैं वल पहाड़ा, मदद लाई यस्सू नू पुकारा. तेरे कलाम को पढ़ने वाला रुतबा तेरा जाने, परस्तिश की माला जपने वाला ज़ात तेरी पहचाने, तेरे कलाम को पढ़ने वाला रुतबा तेरा जाने, परस्तिश की माला जपने वाला ज़ात तेरी पहचाने, कदूस 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 वही है पाक खुदा, लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी वो ही बना था लानती, देने को रास्ती. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. The seraphim, they have 6 wings, absolutely glorious creatures.
that the Lord God made. वो अपने दो पंखों से अपने मुंह को ढांपते हैं, दो पंखों से पाँव को, और दो पंखों से वो उड़ते हैं. And they have been doing this for. सराफीम क्या कर रहे हैं? महाप्रतापी यहोवा परमेश्वर के सिंहासन के आगे, उसके होली सेंचुरी में, they fly with their two wings. With two they cover their faces, with the other two they cover their whole body. They cannot behold the glory of the Lord, even though they are so sacred and holy creatures. Just imagine the awe of the presence of the Lord. Just imagine the magnitude of purity, that spotless magnificence, that flawless radiance that oozes out in His presence, and how these celestial beings are standing in the awe of that Almighty God. And how Christians don't even honor the presence of the Lord. मसीह लोग, नामधारी ईसाई लोग परमेश्वर की उपस्थिति को कुछ भी नहीं समझते. देखिए ये सराफीम, for ages they have been doing this. For ages they have been doing just one assignment, and they have been doing it so delightfully. They must be considering themselves so fortunate, so privileged that God chose them. कि प्रभु ने सराफीमों को अपने लिए अलग किया कि यहोवा के सिंहासन के सन्मुख दो पंखों से उड़ते हैं और क्या गाते हैं? कदूश 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 यहोवा सबायो. सिर्फ ये बोलते हैं. परमेश्वर की उपस्थिति में केवल यही बोला जाता है. Just imagine. For you it will become monotonous. It will become religious rut. It may become an incantation for some of you. It may become a boring routine, but not for those holy celestial beings. For trillions of years they have been doing this. Hallelujah. वो क्या? कदूश 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 याहुआ सबायो. Say after me. कदूश 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 याहुआ सबायो. बहुत सारे लोग मानते हैं कि युद्ध है वाव है की बहुत एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन जो है वो है याहुआ. कदूश 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 यहुआ सबायो. मेरे संग बोले. कदूश 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 यहुआ सबायो. मेरे संग बोले. कदूश 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 Adonai Yahuwah Sabaoth. Sing with me. Kadosh, 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 Adonai Yahuwah Sabaoth. Kadosh, 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 Adonai Yahuwah Sabaoth. Kadosh, Kadosh, Adonai Yahuwah Sabaoth. Kadosh, 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 Adonai Yahuwah Sabaoth. Sing with me. Kadosh, 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 Adonai Yahuwah Sabaoth. गाइए मेरे साथ. Kadosh, 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 Adonai Yahuwah Sabaoth.
Kadosh, Kadosh, Kadosh. Adonai Yahuwah Sabaoth. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Adonai Yahuwah Sabaoth. Kadosh, close your eyes. अपनी आंखें बंद करें. Please do not keep sending messages. Close your eyes. अपनी आंखें बंद करें. गाएं मेरे संग. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Adonai Yahuwah Sabaoth. Sing with me. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Adonai Yahuwah Sabaoth. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Adonai Yahuwah Sabaoth. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Adonai Yahuwah Sabaoth. I see that the Lord is pouring out the oil out of the horn. Fresh oil is coming. Fresh oil of His presence. Gaye milke. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Adonai Yahuwah Sabaoth. 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 We worship you. We exalt you. We adore you. We magnify you, Holy God of Israel. We pour out our being at your feet. We pour out a soul. We pour out our whole being at your feet. Mighty Yahuwah. Adonai Elohim Yahuwah. Adonai Elohim Yahuwah. El Shaddai El Elyon. Hallelujah. We worship you. Avinu Malachinu. Abun Washmayo. In the blood of Yahusha HaMashiach, our elder brother, our redeeming King, we approach your presence, Holy Father, for your name is El Elyon. El Elyon. We worship El Elyon. We worship Yahuwah. We worship Adonai Yahuwah. We worship El Elyon. We worship. खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ इनमें से एक एक जन को छूना. Lord, I pray for, in the name of Jesus, I pray for your daughter, Angela Droch. I pray for her, that your Spirit will touch her, that you will cause an impartation, heavenly impartation in her spirit. Bless her. Bless her siblings. I pray for all of them. Bless her mother, Sunita Kaur. I pray for her. Cover this household under your blood. Lord, I pray for Bobby Art. Bless this brother and his wife. Stretch forth your hand upon him. I bring before you Ranjit Kumar. May your hand be upon this gentleman.
over Laddu Jut. I bring him before your presence. I pray for Daljit Singh, may you touch him. And I pray for Manisha Azal Masih, for your hand, for your anointing, for your blessing over her and her household. Lord, I bring Jaswant Singh before you. May you stretch forth your hand upon him. Over Labdeep Masih, may you stretch forth your hand upon him, Lord. Lord, I pray for Komal Masih and her husband and her family, her children. Cover them under your blood. And her parents' household. Lord, I bring Ruby Sangera before you. I pray for her husband and I pray for her daughters, her children. I cover them under the blood of the Lamb. Hallelujah. And even for her other sister, Taljinder, and her household. I plead your blood, Yahusha, her Mashiach. Bless brother Harpal Singh Bajwa. Open the door for this gentleman to go abroad. Open the door, Father, for this gentleman. I pray for Darshan Singh. I release your blood over Darshan Singh and over his children, over his wife, over his household. And I also bring before you Inderpreet Singh, Lord. May your hand be upon him. May your blessing rest upon this gentleman. Lord, I pray for Manor Masih from Delhi. Lord, I bring his wife, his sons before you, his family in Himachal Pradesh. I bring them all before you. Hallelujah. May your spirit move upon these people. Lord, bless Samina Ashraf. May your hand that still carries the scars be upon her, Lord. Bless Raman Khan and his household, Lord Jesus. And I pray for Daljit Singh, Lord, for your blessing, for your favor, for your anointing to rest upon him. I pray, Lord, for Bhagwat Prasad Ji. Bless this dear gentleman. Bless his household. Bless his family. Stretch forth your hand upon him. Lord, I pray for Angel Suman. I pray, Lord, everything that the enemy robbed from her life, may she turn to you in such a strong way. Lord, radically may she turn around to you, that you may restore her everything that the enemy stole. And not only that, but sevenfold more. Bless Amarjit Kaur and her household, Lord, I pray. Bless brother Lalit Mehra and his family, his household. Bless brother Raman Khan and his household, Lord Jesus. We give you praise. I pray for Rajbin Palke. May your hand, your blessing be upon him. Lord, I bring my household before you. My 3 sons, wife, myself, my mother, my other brother who lives here, his household, and the one who is in Britain. Lord Jesus, your spirit can break every stronghold. Lord, people, when they come from other backgrounds, they bring all satanic stuff accumulated in the DNA. And it remains unsettled, and issues continue to haunt people. And the past in the genome continue to define the life in the future. So give wisdom to your people that they may detect, they may identify all the pitfalls and all the demonic entities that are percolating in their life. खुदावन तेरे लहू की कुदरत काम करे. हालेलुया. धन्यवाद प्रभु, तू जो हमारी प्रार्थनाएं सुनता है. तूने राजबिन पलके को आशीष दिया, तेरा धन्यवाद हो प्रभु. हम तेरे वचन पे जब मेडिटेट करते हैं, खुदावन तेरी स्पिरिट, तेरा रूह, हालेलुया, तेरा अभिषेक हमें तेरी बातें सिखाए खुदावन. इन जीसस नेम, आमेन. हालेलुया, हालेलुया. मैं परमेश्वर के वचन में से कुछ बातें आपके साथ बांटूंगा. Maybe it will be another series. We'll learn about हसतान. हसतान जिसे हम सेटन कहते हैं इंग्लिश में, शैतान. आयरॉनिक बात यह है कि हिब्रू में भी वर्ड है हसतान. हसतान. और न्यू टेस्टामेंट में ग्रीक में जो वर्ड है द डेवल, वो ग्रीक वर्ड है डियाबोलोस. दैट्स अ ग्रीक वर्ड, डियाबोलोस, डियाबलोस. तो डियाबलोस का मतलब होता है एक्यूजर, दोष लगाने वाला. द वन हु एक्यूजेज अस बिफोर द फादर.
यशाया नबी की पुस्तक उसका 14 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो उसके 4 वचन से जब आप पढ़ते हैं तो यशाया 14 में और इज़िकियल 28 में हम देखते हैं कि लॉ ऑफ डबल मेंशन, लाइक अ पैरेलल प्रोफेटिक डिस्कोर्स इज गोइंग ऑन। परमेश्वर एक पृथ्वी के राजे की बात करता करता शैतान की बात करता है, हसतान की बात करता है, कि अर्थली रूलर की बात करता करता परमेश्वर शैतान की ओर आता है। और यशाया 14 में 4 वचन से अगर आप आगे पढ़ते हैं तो उसे लूसीफर आपकी बाइबल में लिखा होगा, लूसीफर, लेकिन उसका जो ओरिजिनल असली नाम है हिब्रू में वो लूसीफर नहीं है, वो है हीलियल। जहाँ पे वर्ड लूसीफर है वहाँ पे ओरिजिनल हिब्रू वर्ड है हीलियल। हीलियल का मतलब होता है ब्राइट शाइनिंग वन, ब्राइट शाइनिंग वन, द कैरियर ऑफ लाइट, रोशनी को लेके जाने वाला। तो जब रोमन कैथोलिक चर्च ने लैटिन में ट्रांसलेशन किया बाइबल को, जिस ट्रांसलेशन को हम वल्गेट कहते हैं, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है बाइबल का उसे मैसोरेटिक टेक्स्ट कहते हैं, जिसे रोमन कैथोलिक चर्च ने बाद में ट्रांसलेट किया उसे हम वल्गेट कहते हैं, जो लातीनी भाषा में है, लैटिन में है। और जो मैसोरेटिक टेक्स्ट से यहूदी स्कॉलर्स ने मिलके 70 स्कॉलर्स ने मिलके ग्रीक में ट्रांसलेट किया, उसे हम सेप्टुअजिंट बोलते हैं। तो ये 3 मेन आधारभूत बाइबल के अनुवाद हैं, मैसोरेटिक टेक्स्ट, वल्गेट एंड सेप्टुअजिंट। और इसके अलावा और बहुत से रिसोर्सेज हैं। किसी समय मैं बाइबल के ऊपर ही हमें स्टडी करनी पड़ेगी, मे बी 8 to 10 आवर्स स्टडी होगी इसको पूरी गहराई में हमें जानने के लिए। तो ये ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम है। लूसीफर जो है इसे ट्रांसलेट करने वालों ने यहाँ पे डाल, जैसे अगर आप प्रेरितों के काम 12 अध्याय का 4था वचन पढ़ेंगे, इंग्लिश में अगर किंग जेम्स वर्जन पढ़ते हैं आप, प्रेरितों के काम 12 अध्याय और उसका अगर आप 4था वचन पढ़ेंगे तो अगर आप पढ़ेंगे इंग्लिश के किंग जेम्स में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको वर्ड मिलेगा ईस्टर, ईस्टर, ठीक है। लेकिन ये वर्ड ईस्टर बाइबल में नहीं है, ये भी रोमन कैथोलिक ट्रांसलेशन की देन है। जब आप पंजाबी पढ़ते हैं, पंजाबी वालों ने बहुत बढ़िया काम किया है बहुत जगह। पंजाबी में बहुत सी कमियां हैं ट्रांसलेशन में, बहुत सी आते हैं ही नहीं बीच में, लेकिन मैसोरेटिक टेक्स्ट को लेके इन्होंने स्टडी किया तो इन्होंने ईस्टर नहीं लिखा है, इन्होंने फसा लिखा है। जो ओरिजिनल वर्ड है वो पास्का है, ग्रीक में पास्का, हिब्रू वर्ड है पीशाक, तो उसको इन्होंने ईस्टर कह दिया है ट्रांसलेटर्स ने। क्यों कह दिया है? क्योंकि अगर पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो हेरोड राजा है, और जो हेरोदेस राजा है, किंग हेरोड, वो ईडोमाइट है। और जो बाइबल की ये ट्रांसलेशन कर रहे हैं ये ग्रीक पर्सपेक्टिव को व्यू में रख के कर रहे हैं, यूनानी पर्सपेक्टिव को। तो उन्होंने इसको पास्का को क्या बना दिया है, ईस्टर बना दिया, लेकिन ये ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं है। पंजाबी की बाइबल में आपको ईस्टर यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से ग्रीक में जब ट्रांसलेट किया गया, किसे? हीलियल को, उसका नाम है हीलियल। बाइबल में ये नाम है हीलियल, बीलियल, ये एंजल्स के नाम है जो फॉलन एंजल हो गए अब। समझ रहे हैं आप? तो ट्रांसलेशन वालों ने उसको लूसीफर बीच में डाला, और ऐसे ही जब उसकी ट्रांसलेशन ग्रीक में की गई, लैटिन में लूसीफर कह दिया गया, जब ग्रीक में ट्रांसलेट किया गया तो उन्होंने उसको नाम दे दिया डियाब्लोस। डियाब्लोस का मतलब द वन हु एक्यूजेस, द वन हु एक्यूजेस अस बिफोर द थ्रोन ऑफ द फादर। हालेलुया। लूसीफर, Satan, devil, Heliel,
ये सब उसको नाम दिए गए अलग अलग ट्रांसलेशन के कारण। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो जादूगरी की, अकल्ट की दुनिया है, विच क्राफ्ट की दुनिया है, डार्क किंगडम है, उस किंगडम में लूसीफर जो है उसकी पूजा की जाती है। लूसीफेरियन जो कल्ट है, फ्री मेसनरी, लूसीफेरियन, इल्यूमिनाटी, ये बहुत बड़े डार्क कल्ट हैं, और ये वो कल्ट के लोग हैं जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं। पूरी दुनिया का पॉलिटिकल सिस्टम इनके ही हाथों में है। रिपब्लिकन हों, डेमोक्रेट्स हों, यूनाइटेड स्टेट्स में आप वाशिंगटन डीसी जाइए, वाशिंगटन डीसी में जितने मॉन्यूमेंट बने हैं, पुरानी बिल्डिंग बनी है, वो सब फ्री मेसनरी लोगों की बनाई गई हैं। फ्री मेसनरी लोगों की ही डॉक्ट्रिन है वहाँ पे, उन्हीं की तालीम है, उसी के आधार पे उसे बसाया गया है। और फिर जब आप पूरे विश्व में जाते हैं, यूरोप में जाइए, वहाँ पे देखिए इमारतें, बिल्डिंग्स, ब्रिटेन में जाइए, वहाँ पे देखिए, सबके पीछे यही हिस्ट्री है। लूसीफेरियन, फ्री मेसनरी, इल्यूमिनाटी, डार्क नाइट्स, द रॉयल ब्लड लिनेज, दीज आर द पीपल हु आर रूलिंग द वर्ल्ड। जो बैंकिंग सिस्टम है इनका है, 90% बैंकिंग सेक्टर में इनका पैसा है। जो पॉलिटिशियंस बड़े बड़े दुनिया के अंदर बैठे हैं वो इनके ही लोग हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं का संग्रहालय है, यूनेस्को इन्हीं का संग्रहालय है। दीज आर दी वंस हु आर रूलिंग एंड हु आर लीडिंग। तो अकल्ट की दुनिया में लूसीफर को कहा जाता है लाइट बेयरर, ब्राइट एंड द मॉर्निंग स्टार। क्या लिखा है? भोर का, सन ऑफ द मॉर्निंग स्टार कहा गया है यशाया की पुस्तक में। यशाया 14:4 से पढ़ेंगे तो क्या कहा गया लूसीफर को? सन ऑफ द मॉर्निंग, सुबह का, मॉर्निंग का पुत्र कहा गया है। हिब्रू में लिखा हुआ है बेन हा शखार, बेन हा शखार, शखार का पुत्र है ये लूसीफर। और जो शखार है ये एक गॉड है, डेमी गॉड है, जो डे के ऊपर रूल करता है, दिन के ऊपर राज्य करता है, मॉर्निंग के ऊपर शासन है, जिसके आदेश से मॉर्निंग निकलती। उन लोगों के पैंथियन में, अलग अलग जातियों के देवी देवताओं के पैंथियन के अंदर बेन शखार है। तो ये शखार कौन है? कभी आपने इसका अध्ययन नहीं किया होगा। ये एक डेमी गॉड है शखार। आपको मालूम उसे सन ऑफ द मॉर्निंग कहा गया है। यीशु मसीह अपने आप को क्या कहते हैं प्रकाशित वाक्य में? आई एम द ब्राइट एंड द मॉर्निंग स्टार। मैं भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं प्रकाशित वाक्य में 2 जगह पे, आई एम द ब्राइट एंड द मॉर्निंग स्टार। आपको मालूम ये मॉर्निंग स्टार क्या है? इसे पत्रस पत्री के अंदर लिखता है डे स्टार, सुबह का तारा। ये जो मॉर्निंग स्टार है, डे स्टार है, ये प्लैनेट वीनस है। आप हैरान होंगे सुबह में जब 3 बजे के बाद का टाइम होता है तो ये आकाश में दिखाई देता है। ये प्लैनेट सबसे ज़्यादा ब्राइट होता है, ये सारे तारों और प्लैनेट से ज़्यादा चमकीला होता है वीनस, और मॉर्निंग में दिखाई देता है, और इसे जीसस के संग एसोसिएटेड किया गया है। और आई एम द ब्राइट एंड द मॉर्निंग स्टार प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। आपको मालूम लूसीफेरियन डॉक्ट्रिन क्या है जो इतनी डेंजरस है? लूसीफेरियन डॉक्ट्रिन के अंदर बहुत सारे प्रचारक अमेरिका में लूसीफेरियन तालीम का प्रचार करते हैं। बहुत सारे वर्ड ऑफ फेथ वाले प्रचारक, बहुत सारे फॉल्स प्रॉस्पेरिटी कल्ट वाले प्रचारक, वो लूसीफेरियन टेंटेकल्स की प्रीचिंग करते हैं। बहुत अफ्रीकन अफ्रीकन जो मेजर माइनर पापा डैडी हैं वो भी यही डॉक्ट्रिन प्रीच करते हैं। वर्ड ऑफ फेथ के अंदर इसका एलिमेंट है, जो आपको सिखाते हैं ना, स्पीक एंड इट विल हैपन, बोलो तो तुम्हारे लिए ये हो जाएगा। ये यीशु मसीह ने कहा है, नो डाउट, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली इलेबोरेट किया जाता है फ्री मेसनरी के अंदर, इल्यूमिनाटी के अंदर, और ये शैतानी तालीमों के अंदर। बहुत सारे प्रीचर भी, मैं एक प्रीचर को सुन रहा था जो बता रहा है कि आदम को परमेश्वर ने अपने कद के मुआफिक बनाया। अ फेमस प्रीचर इन अफ्रीका, जिनके कई स्पिरिचुअल सन हैं हमारे पंजाब में भी। वो ये टीच कर रहा था कि जब परमेश्वर आदम को बनाने लगा,
अगर आदम को अपने से छोटा बनाता तो उसे झुकना पड़ता, अगर आदम को अपने से बड़ा बनाता तो उसे मुंह ऊपर उठा के देखना पड़ता, तो उसने आदम को अपने बराबर बनाया। कितनी ही ज़्यादा डेंजरस, कल्टिक, शैतानी, फॉल्स टीचिंग देने वाले ये लोग हैं, जो ये बताते हैं मैन इज़ अ मिनी गॉड, ही इज़ अ बिग गॉड, मैन इज़ अ स्मॉल गॉड। और फेथ की टीचिंग करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग की जो टीचिंग है, पॉजिटिव फ्रेमवर्क ऑफ माइंड, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव कन्फेशन, ये जब कलाम से बाहर निकल जाता है तो शैतानी जोन में डील करता है। ये सब लूसीफेरियन टीचिंग है, फ्री मेसनरी लोगों की टीचिंग है। मैं आपको रिकमेंड तो नहीं करता, लेकिन अगर आप में से कोई गहरा अध्ययन करना चाहता है तो आप अल्बर्ट पाइक की एक पुस्तक है मॉरल्स एंड डॉगमा, उसे लेके पढ़िएगा और आपको ऐसे लगेगा जैसे आप अमेरिका के पास्टरों की प्रीचिंग सुन रहे हो। अल्बर्ट पाइक, he talks about, he has written a book. The book is called Morals and Dogma. You study that book, तो आपको पता लगेगा। हालेलुया। ये सब बाबुल से शुरू हुआ। तो क्या कहते हैं फ्री मेसनरी लोग? फ्री मेसनरी लोग सेटन को, लूसीफर को वर्शिप करते हैं। लूसीफर को ये कहते हैं ही इज़ द वन हु गिव्स इल्यूमिनेशन, वो रोशनी देता है, वो ज्योति देता है, वो बुरा नहीं है, ईवल नहीं है, विशेष नहीं है, बल्कि उससे इल्यूमिनेशन ढूंढते हैं। ये जो ग्रेट अवेकनिंग आप शब्द सुनते हैं ना, ग्रेट अवेकनिंग, जो आप ईस्टर्न मिस्टिसिज्म और आप देखते हैं थियोसॉफिकल टीचिंग, थियोसॉफिकल टीचिंग शायद कभी आपने सुनी या नहीं। एक लेडी थी 18th सेंचुरी में, उनका नाम था मैडम हेलेना ब्लोबास्की। उन्होंने एक सोसाइटी शुरू की, वो जूइश रूट थी उसकी, और वो बाइबल उसने बहुत पढ़ी और उसने एक कल्ट शुरू किया, शैतानी कल्ट शुरू किया, थियोसॉफी। थियो मीन्स गॉड, सॉफी विजडम, द विजडम ऑफ गॉड, हिडन विजडम, हिडन नॉलेज। एंड शी स्टार्टेड अ न्यू रिलीजन कॉल्ड थियोसॉफी, जिसमें बाइबल पढ़ी जाती थी, बाइबल को ही प्रीच किया जाता था, लेकिन अलग ढंग से। आपको मालूम, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अर्ली 19th सेंचुरी में हमारे देश में अपनी ब्रांच खोली, और एक बहुत बड़ी इंडिया की पॉलिटिशियन, उनकी फॉलोअर थी मिसेस एनी बेसेंट, जो इंदिरा गांधी के बहुत करीब थी, और इंदिरा गांधी के संग वो टीचिंग थियोसॉफिकल शेयर की जाती थी। बहुत सारे हॉलीवुड के स्टार्स जो हैं वो साइंटियोलॉजी और थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर हैं, इल्यूमिनाटी के मेंबर हैं, और ये शैतानी कल्ट के मेंबर हैं। आपको मालूम इन कल्ट के अंदर क्या किया जाता है? फ्री मेसनरी, इल्यूमिनाटी कल्ट के अंदर इसमें बच्चों को अब्यूज़ किया जाता है, बच्चों, छोटे बच्चों के संग सेक्स करते हैं वो लोग, जिसे आप टर्म सुनते होंगे पेडोफीलिया। पेडोफीलिया अगर आप अध्ययन करेंगे इसका, रोमन कैथोलिक चर्च के बिशप, विकर्स, बड़े बड़े पास्टर पेडोफाइल्स हैं, जो बच्चों के साथ ऐसे बुरे काम करते हैं। इसके अंदर जो विच क्राफ्ट है, उस विच क्राफ्ट में बहुत सी शैतानी बातें हैं। बच्चों को डराया जाता है, मारा जाता है। जब बच्चे डरते हैं और बच्चे भयभीत हो जाते हैं तो एड्रेनल उनकी बॉडी में बहुत हाई होता है, एड्रेनल। वो एड्रेनल एक एनर्जी है जिसे सेक्स के द्वारा, काम वासना के द्वारा ये अपने अंदर लेते हैं। और ऐसी ऐसी शैतानी प्रैक्टिसेस हैं, जो बेबी अबॉर्ट किए जाते हैं, उनके फीटस को ड्रिंक करते हैं, उनके ब्लड को पीते हैं, शैतानी रिचुअल किए जाते हैं, जिनके विषय में शायद आप लोगों ने कभी कोई शिक्षा नहीं ली है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, एंड इट इज़ एन आई ओपनर। तो लूसीफेरियन जो हैं, आप पढ़िएगा जूइश एनसाइक्लोपीडिया, कॉफमैन कॉलर नाम के एक स्कॉलर का जूइश एनसाइक्लोपीडिया, तो आपको उसमें पता लगेगा। जैसे इस्राएली लोग बाबुल की गुलामी में गए, और मैंने आपको बताया, बहुत बार ये टीचिंग दी
कि बाबुल में जब वो गए तो शैतान ने उन्हें अंधेरे में डाला। शैतान ने उन लोगों को लीड किया और उन्होंने हलागा लिखा, हगाडा लिखा, गमारा लिखा, थैलमद लिखा और मिशना लिखा और परमेश्वर के सच्चे और जीवित कलाम से दूर हो गए। वो मूसा की व्यवस्था पे नहीं चलते थे, नबियों की पुस्तकों पे नहीं चलते थे। उन्होंने अपनी इंटरप्रिटेशन की कलाम के ऊपर, अपनी व्याख्या की। उन्होंने ऑरल लॉ, जो ऑरली ट्रांसमिट किया गया था, ऑरल लॉ को क्रीडेंस दी यहोवा के लिखित कलाम के ऊपर। आपको मालूम टलमड क्या कहती है? टलमड कहती है अगर 1000 प्रॉफिट प्रोफेसाई करें और उन 1000 प्रॉफिट के साथ आके इलाइजा भी खड़ा हो जाए, एलिया भी, और वो बात सिखाएं जो ऑरल लॉ के खिलाफ है, तो तुमने एलिया और 1000 प्रॉफिट की बात नहीं सुननी, तुमने ऑरल ट्रेडिशन को फॉलो करना है, जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह यहूदी फरीसी, सदूकियों और धर्म के ठेकेदारों की बहुत भयंकर ताड़ना करते हैं। उन्हें कहते हैं तुम अपने पुरखों के रीति रिवाज और परंपराएं लोगों को सिखाते हो, तुम इंसानों की शिक्षा सिखाते हो और यहोवा के मुंह से निकले कलाम को रद्द करते हो। हाय तुम्हारे ऊपर, हाय तुम्हारे ऊपर, तुमने परमेश्वर के जीवित कलाम को धर्म में बदल दिया। जब जब परमेश्वर के सच्चे कलाम को तोड़ के मरोड़ के प्रचार किया जाता है, तब तब यहोवा की सज़ा आती है। ये कोरोना वायरस इसीलिए है, ये पाप चर्च ने किया है, कलीसिया ने, बहुत सेलिब्रिटी फेमस प्रचारकों ने किया है, जिन्होंने लोगों को पॉजिटिव थिंकिंग सिखाई है, जिन्होंने लोगों को मोटिवेशनल प्रीचिंग की है, जिन्होंने लोगों को सूडो प्रॉस्पेरिटी सिखाई है, जिन्होंने लोगों को तंग फाटक नहीं दिखाया कि तंग फाटक में से घुसो और तंग मार्ग के ऊपर चलो, जिन्होंने लोगों को यीशु मसीह के क्रूस के संग नहीं जोड़ा। अपने संग तो जोड़ा होगा, अपनी मिनिस्ट्री के संग जोड़ा होगा, अपनी मिनिस्ट्री के सिल्वर, डायमंड, गोल्डन, प्लैटिनम पार्टनर बनाया होगा, उन्हें ट्रेड किया होगा, दबा के मर्चेंडाइज किया होगा, एनॉइंटिंग के संग प्रोस्टिट्यूशन किया होगा उन्होंने, लेकिन उन्होंने लोगों को क्रूस के साथ नहीं जोड़ा, क्रूस पे बहाए गए अलौकिक लहू के साथ नहीं जोड़ा। उन्होंने लोगों को यीशु मसीह की शिक्षा के साथ, जो कहता अपने आप का इनकार करे और क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले, जो कहता जो अपने माँ बाप, बहन भाई और लूका की इंजील में कहता अपनी पत्नी और बच्चों से मुझसे ज़्यादा प्यार करता है, वो मेरे लायक नहीं है। जिसने सिखाया नरक के ऊपर कि नरक एक वास्तविकता है, जिसने ये सिखाया कि हर तरह के हरामकार, जनाकार, लुचपना करने वाले, बुराई करने वाले, हत्या करने वाले, गंदे घिनौने काम करने वाले, मूर्तियों की पूजा उपासना करने वाले, परमेश्वर के सच्चे कलाम को तोड़ने और मरोड़ने वाले नरक की आग में जाएंगे। जिसने ये प्रचार किया, उसके प्रचार को प्रचार नहीं करते, वो लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को बढ़िया बढ़िया सा जुमले सिखाते हैं। गॉड इज़ गोइंग टू प्रॉस्पर यू, ग्रेट ब्रेक थ्रू इज़ कमिंग योर वे, दिस इज़ गोइंग टू बी अ ईयर ऑफ ग्रेट सरप्राइजेज। 2019 में पढ़ जाके देखो उनकी फेसबुक पे, उन सारे झूठे नबियों ने लोगों को वर्गलाया था। 2020 के विषय में उन्होंने बोला था बरकतों के साल हैं, आशीषों के साल हैं, फुलनेस का साल है, वो पता नहीं क्या क्या बातें, सुपर अबंडेंस का साल है, परफेक्ट विजन 2020 का साल है। देखिए ये कैसा साल आया। मुझे 2019 के एंड में यहोवा ने बताया, मुझे एक्चुअली प्रभु ने 2017 में बताया कि जच्चा की पीड़ा शुरू हो गई हैं। सच्चा कलाम प्रचार करने वाले बहुत कम हैं, झूठ बोलने वाले, लोगों को मोटिवेट करने वाले झूठे ढंग से। प्रभु कहता है मेरी प्रजा पे तलवार लटकी है, लेकिन झूठे नबी कहते हैं शांति होगी, बहुत शांति होगी, सुकून होगा और तुम्हें कामयाबी मिलेगी और तुम बड़े भरपूर हो जाओगे और तुम्हें खुशहाली मिलेगी। प्रभु कहता है तलवार तो मेरी गिरेगी लोगों पे, लेकिन मैं अपने लोगों के खून का बदला उन झूठे नबियों से, झूठे भेड़ियों से, झूठे अपोस्टल से जो अपने आप को पापा डैडी कहते हैं, उनसे मैं बदला लूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरी प्रजा को मेरे सच्चे मार्ग नहीं सिखाए, मेरे सच्चे कलाम का ऐलान नहीं किया। अपने स्वार्थ के लिए परमेश्वर के कलाम को तोड़ा मरोड़ा, नई स्पिन दी परमेश्वर के कलाम को।
हालेलुया। आपको मालूम, आप पढ़िएगा मैडम हेलेना ब्लोवास्की, इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा, स्टडी अबाउट हर थियोसॉफिकल सोसाइटी, व्हाट शी टीचेस। वो बताते हैं कि हसतान जो है, लूसीफर जो है, ही इज़ फादर ऑफ लाइट, ही इज़ द ट्रू लाइट, ही विल ब्रिंग ट्रू इल्यूमिनेशन इन ह्यूमन हार्ट। मनुष्य के हृदय में सच्ची ज्योति लूसीफर जगाता है, और लूसीफर सत्य है, ये वो सिखाते हैं। और लूसीफेरियन टीचिंग है कि जीसस भी मॉर्निंग स्टार है और लूसीफर भी मॉर्निंग स्टार है, जबकि जीसस कहते हैं आई एम द ब्राइट एंड द मॉर्निंग स्टार। और जशाया 14 अध्याय में सेटन को कहा गया है सन ऑफ द मॉर्निंग, और जो सन ऑफ द मॉर्निंग कहा गया है वो है बिनय हा शहर, बिनय हा शहर। शहर जो एक देवता है कनानी लोगों का, जो मॉर्निंग को कंट्रोल करता है, उसका पुत्र कहा गया है। तो कैसे कैसे कलाम को ट्विस्ट किया जाता है। अगर आप पढ़ेंगे ना, अल्बर्ट पाइक, इंटरनेट पे सर्च करें और उनकी बुक मिलेगी मॉरल एंड डॉगमा, तो आप देखेंगे ये बंदा अल्बर्ट पाइक ने 18 सेंचुरी में पुस्तक लिखी है। उस बंदे ने अपनी पुस्तक में ये लिखा है कि आखिरी जो लड़ाइयाँ होंगी, रेडिकल इस्लाम कैसे फैलेगा, कैसे इस्लाम लोगों को बुच्चर करेगा, और कैसे कम्युनिज़्म और इस्लाम का मेल होगा। कम्युनिज़्म और इस्लाम रैली करेंगे आपस में एंड की लड़ाई में। ये सब अल्बर्ट पाइक 200 साल पहले लिख गया। कैसे कैसे अमेरिका को हाईजैक किया जाएगा, कैसे इज़राइल के ऊपर अटैक किया जाएगा, ये सब अल्बर्ट पाइक ने ऑलरेडी लिख दिया, और वैसे ही संसार के अंदर सब कुछ घट रहा है। हालेलुया। आप पढ़िएगा अल्बर्ट पाइक की पुस्तक का पेज नंबर 104, वहाँ पे वो क्या लिखते हैं, कितनी डिसेप्शन है। वो लिखते हैं फ्री मैसनरी लाइक ऑल अदर रिलीजन एंड मिस्ट्री कल्ट्स, mystery cult and मेटासिज्म एंड एल्कमी, ये सब अलग अलग ब्रांचेस हैं। समझ रहे हैं आप? ऑल सीक्रेट रिलीजन, ऑल मिस्ट्री कल्ट्स, मेटासिज्म एंड एल्कमी। क्या कहता है? ये कंसील करते हैं, दे कंसील सीक्रेट्स फ्रॉम ऑल, सबसे सीक्रेट को कंसील करते हैं, एक्सेप्ट द एडेप्ट सेजेस एंड इलेक्ट। और इनकी जो ये इंटरनल टीचिंग है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये किसके पास होती है? इनके एडेप्ट सेजेस एंड इलेक्ट, इनके अंदर जो रिक्रूट होते हैं लोग, केवल उनके पास होती है। और क्या लिखा है पेज नंबर 104 पे? वहाँ पे लिखा है फ्री मेसनरी यूजेस फॉल्स एक्सप्लेनेशन टू मिसलीड, फॉल एक्सप्लेनेशन एंड सिंबल्स टू मिसलीड दोज हु नीड टू बी मिसलेड। संसार के बाकी के लोगों को ये सच्चाई नहीं बताई जाती। जो लोग इनके अंदर जाके इनिशिएट होते हैं, उन्हीं को ये डीप नॉलेज मिलती है, बाकी लोगों को ये नॉलेज नहीं दी जाती। हालेलुया। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी के टीचर हैं वो बहुत इग्नोरेंट है, दे आर वेरी इग्नोरेंट, एंड यू नो फ्रॉम वेयर दे डिराइव देयर टीचिंग? दे डिराइव 80% ऑफ देयर टीचिंग फ्रॉम कबाला। कबाला सुना कभी आपने? यहूदी लोगों में से कुछ लोगों ने विच क्राफ्ट किया, विच क्राफ्ट की एक बड़ी ज़बरदस्त ब्रांच तैयार की है। डार्क किंगडम, काले इलम की एक बहुत बड़ी, उसके अंदर बहुत अच्छी बातें भी हैं। ज़ोहार में, कबाला में कुछ अच्छी बातें हैं, लेकिन देखिए जिस जहर से चूहे को मारा जाता है उसमें 98% एडिबल मटेरियल होता है, केवल 2% जहर होता है जिससे चूहा मरता है। ऐसे ही शैतान करता है। ज़ोहार एक पुस्तक है, बहुत अद्भुत किताब है, एक तरह से लुभाने वाली। ज़ोहार कबाला की, कबाला का मतलब होता है टू रिसीव। इट इज़ अ डार्क टीचिंग। और आप हैरान होंगे
कबाला के अंदर एग्जैक्टली सेम कुंडली जागरण है जो हमारे देश के अंदर, जो आपकी स्पाइन को इनिशिएट कैसे किया जाता है, होरस की आंख कैसे खोली जाती, चक्र जो हमारे शरीर के अंदर है, कुंडलिनी जागरण। अमेरिका की बहुत सारी चर्चेज कुंडलिनी जागरण कर रही हैं, ब्रिटेन में भी हैं, यूरोप में भी। इवन टीडी जेक्स की चर्च के अंदर उनकी पत्नी योगा कर रही थी। ये अंधकार का समय है, लोग गिर रहे हैं, शैतानी ताकतें लोगों को डिसीव कर रही हैं। जिनके अंदर प्रभु के वचन की जड़ नहीं है वो गिर जाएगा। जो प्रभु के वचन को नहीं जानता वो प्रभु को नहीं जानता। प्रभु कहते हैं कि जब मैं व्हेन आई कम विल आई फाइंड फेथ ऑन द अर्थ, वुड देयर बी फेथ अपॉन द अर्थ व्हेन आई कम? So Freemasonry will purposely conceal the things from 95% of the world. They believe only 5 to 8% people will follow them, and they are the elites. They are the initiated ones. They are the ones who carry an elimination inside. आपको मालूम वो दुनिया को क्या कहते हैं? दुनिया को कहते हैं फीडर एंड ब्रीडर। दुनिया में 95% लोगों को फीडर एंड ब्रीडर गिना जाता है। क्रिश्चियन लोगों को इग्नोरेंट मानते हैं और मानते हैं कि दे फीडर एंड ब्रीडर हैं। ये इन्हीं की बुक, अल्बर्ट पाइक की बुक, पेज नंबर 321 पढ़िएगा, मॉरल एंड डॉगमा में क्या लिखते हैं? लूसीफर द लाइट बेयरर, लूसीफर द सन ऑफ द मॉर्निंग, isn't he the one who bears the light, so bright light that the light will blinden the sensual and the proud? कितनी क्रिप्टिक बात लिख रहा है ये बंदा कि लूसीफर जो है, अल्बर्ट पाइक की बुक मॉरल एंड डॉगमा पेज नंबर 321 क्या लिखता है? क्वेश्चन डाल रहा है, इट्स अ साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इजंट ही द वन हु बेयर्स द लाइट? क्या वो मैग्निफिसेंट लाइट को ले जाने वाला लूसीफर नहीं है? इजंट ही द वन हु कैरीज दैट डेजलिंग लाइट? वो इतनी ज़बरदस्त लाइट है कि जो सेंशुअल हैं, शारीरिक हैं और जो घमंड से भरे हैं वो तो अंधे हो जाएंगे, चुंधे आ जाएंगे, उनको रोशनी दिखाई नहीं देगी। तो वो ये बता रहा है जो बीडर एंड फीडर हैं, जो दुनिया के बाकी लोग हैं, जिन्हें बच्चे पैदा करना ही जिनका काम है, ब्रीड करना और फीड करना ही जिनका काम है, उनको ये समझ नहीं आएगी। लूसीफर विल गिव यू द लाइट not easily, and Lucifer will not give the light to everyone, just the elect ones. बाकियों को बोलते हैं तुम useless eaters हो, useless breeder हो। समझ रहे हैं आप? That's how the elite feel as they are propagating that they have to depopulate the earth. आप समझ रहे हैं? ये बिल गेट्स साहब और सोरोस साहब और हेनरी किसिंजर और रॉथचाइल्ड एंड ऑल दीज बिग इलीट पीपल, इनको मालूम भी नहीं है। इनमें से लोग हैं जिनके पास $500 ट्रिलियन हैं। $500 ट्रिलियन पूरे वर्ल्ड की जीडीपी है और इससे ज़्यादा पैसा इन लोगों के पास है। ये दूसरे लोगों को यूजलेस ईटर एंड ब्रीडर समझते हैं। ये समझते हैं हम इल्यूमिन्ड हैं, हमें रोशनी मिली है, और लूसीफर जो है इज़ अ बेनेवोलेंट गॉड। समझ रहे हैं आप कलाम को किधर की ओर लेके जा रहे हैं? इसलिए बिल गेट्स चाहता है कि डीपॉपुलेशन हो पृथ्वी की। जो वैक्सीनेशन आई पृथ्वी पे, आप जरा कल्पना कीजिए भाई और बहनों, जब यहोवा ने मनुष्य को बनाया, उसे यहोवा ने पूरी तरह से यहोवा ने कॉम्पिटेंट बनाया टू फाइट एनी वायरल अटैक, विशस बैक्टीरियल अटैक और एनी काइंड ऑफ फंगल अटैक। ही पुट एवरीथिंग इनसाइड हिम। उसके बाद सिन आया। सिन आने के बाद भी मनुष्य के पास बहुत कुछ था। तो उन एजेस के अंदर कौन सी वैक्सीनेशन हुआ करती थी? देयर वाज नो वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन डीपॉपुलेशन का एजेंडा है। आपको मालूम, जहाँ जहाँ बच्चों को अभी रिसेंटली वैक्सीनेट किया गया, बच्चों के अंदर बाइपोलर डिसऑर्डर है, बहुत तरह की साइकिक प्रॉब्लम बच्चों के अंदर आ गई हैं। तो ये अमीर लोग आम लोगों को सिर्फ ईटर एंड फीडर समझते हैं और उनको डीपॉपुलेट करना चाहते हैं। ये सब चीज़ें उसी एजेंडा की ओर चलती जा रही हैं।
जो वैक्सीनेशन है वो जो आएगी अभी, दैट वुड बी द डीपॉपुलेशन एजेंडा। और आपको मालूम उसके अंदर जो एलिमेंट है, जो वैक्सीनेशन बिल गेट्स साहब तैयार कर रहे हैं, उसके अंदर एक एलिमेंट है जिसका नाम है लूसीफरेसे। लूसीफरेसे, मैं उसके ऊपर आपको किसी समय एक पूरा सेशन करेंगे हम कि क्या चीज़ वो लेकर आ रहे हैं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य बताता है बिलियंस ऑफ पीपल आर गोना डाई। मिलियंस में नहीं मरेंगे, 1/3 विल डाई, 1/3 मर जाएगी, 1/3 मर जाएगी। आपको मालूम, अगर आप रोमन कैथोलिक चर्च का अध्ययन करें तो रोमन कैथोलिसिज्म सरफेस पे वो लोगों को फ्री मेसनरी बनने से रोकते हैं। वो उनकी चर्चेस के अंदर उनकी कॉन्ग्रीगेशन को ये सिखाया जाता है कि फ्री मेसनरी एक कल्ट है, एक डार्क कल्ट है, ये किंगडम ऑफ डार्कनेस है, लेकिन ये हॉग वॉश है। ये उनके ईटर और फीडर को सिखाया जाता है। जो उनकी 95% कॉन्ग्रीगेशन है उनको यही सिखाया जाता है। लेकिन आपने कभी सुना ब्लैक पोप के विषय में? ब्लैक पोप, ये कोई स्किन के कलर का नाम नहीं है। ब्लैक पोप एक ऑफिस है। रोमन कैथोलिसिज्म में एक ब्रांच है जिसे जेसुइट्स कहा जाता है। जेसुइट्स, टेम्पलर, ये स्टडी कीजिएगा, ये कौन सी ब्रांचेस थी इनके अंदर। ये वॉरियर लोग थे, लोगों को मारते थे, मर्सनरीज थे ये लोग। सोर्ड से लोगों को रोमन कैथोलिसिज्म के अंदर लाया जाता था उस समय। तो ये जो ब्लैक पोप है, ये जेसुइट्स का जो है वो जनरल सेक्रेटरी है। आप इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं इग्नाशियस लॉयला के विषय में। इग्नाशियस लॉयला जो था रेफर्मेशन के समय, वो व्यक्ति इनमें से बाहर निकल आया, ब्लैक पोप। और आप थोड़ा हिस्ट्री का अध्ययन कीजिए। ये बाइबल जो थी ये लगभग 600 साल तक लतीनी भाषा में ही रही, लैटर में ही। निसियन क्रीड के बाद, कॉन्स्टेंटाइन के बाद जो क्रिश्चियनिटी ऑफिशियल धर्म बन गया, रोमन कैथोलिसिज्म का जन्म हुआ। और बहुत सी ऐसी शैतानी टीचिंग्स आई, रोमन कैथोलिक इंडल्जेंसेस, प्रेइंग इन द नेम ऑफ द सेंट, परगेटरी, पेइंग फॉर योर साल्वेशन, बहुत सी ऐसी, आप पढ़िएगा मार्टिन लूथर के विषय में। जो रेफर्मेशन आई, रेफर्मेशन के अंदर बहुत सारे प्रभु के संतों ने लैटिन सीखी। पहले लतीनी भाषा आम बंदे को सीखनी नहीं दी जाती थी, केवल पोप विकर बाइबल पढ़ा करते थे 400-500 साल तक। आम व्यक्ति नहीं वो भाषा सीख सकता था, क्योंकि उसे ये होली भाषा कहते थे। फिर लोगों ने भाषा का अध्ययन करना शुरू किया, भाषा को पढ़ना शुरू किया, और उन्होंने देखा कि कोई परगेटरी नहीं है, कोई इंडल्जेंस नहीं है, सेंट्स के नाम में प्रेयर नहीं करना है। तो उन्होंने देखा कि धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा, धर्मी जन अनुग्रह के द्वारा बचाया जाएगा, कामों के द्वारा नहीं। तो सच्ची शिक्षा जब आने लगी तो आप पढ़िएगा काउंसिल ऑफ ट्रेंट के विषय में। काउंसिल ऑफ ट्रेंट क्या है? एक रोमन कैथोलिक विकर्स की हाई ऑफिशियल की मीटिंग हुई जिसे काउंसिल ऑफ ट्रेंट कहा जाता है। उसमें इन लोगों ने प्रेयर की, क्योंकि बहुत सारे लोग मार्टिन लूथर के पीछे निकल आए। आपको मालूम ये बाइबल आप तक कैसे पहुंची है? शायद आपने कभी अध्ययन नहीं किया इसके विषय में। ये बाइबल भाई और बहनों आग से और खून से बाहर निकली है। इट केम आउट ऑफ ब्लड एंड फायर। आपको मालूम सैकड़ों लोगों ने अपनी जान दी है बाइबल आप तक पहुंचाने के लिए। इसको ट्रांसलेट नहीं होने देते थे ये लोग। काउंसिल ऑफ ट्रेंट में उन लोगों ने क्या किया? उन्होंने उन लोगों को जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, इनकी कुरीतियों के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, इनकी गलत शिक्षा के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, इनके गंदे घिनौने कामों के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, उन लोगों को प्रोटेस्टेंट इन्होंने कहा। और उन लोगों को काउंसिल ऑफ ट्रेंट में इन्होंने प्रेयर करके क्या किया? उन लोगों को कंडेम किया टू हेल फायर। They prayed that these Protestant people will be thrown in the fire of the hell.
And they said they will not accept the authority of Mother Church, those who don't accept the authority of Mother Church and supremacy of Catholic Church, उन लोगों को आग के हवाले किया जाए। वो नरक के हवाले हैं और उनको आग के हवाले कर दिया जाए। आपको मालूम मार्टिन लूथर ने कितना दुख भोगा? पढ़ा कभी आपने? बहुत सारे बाइबल के बड़े बड़े स्कॉलरली लोग थे, जैसे कि जॉन हस, जॉन विक्लिफ, जेरोम ऑफ प्राग जो चेकोस्लोवेकियन थे, ज्विंगली, जॉन एलन, जॉन कॉलिंस, जॉर्ज क्रॉफ्ट, पॉल ऑफ सेंट विलियम्स, थॉमस एपर्सन, विलियम टिंडल, इन लोगों को जिंदा जला दिया गया। जिंदा जला दिया गया। टिंडल को 1536 में बेल्जियम में वृक्ष के साथ बांध के लकड़ियां लगा के जिंदा जला दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया। किंग जेम्स वर्जन, जो 1611 किंग जेम्स वर्जन है, 1611 किंग जेम्स वर्जन, दैट इज एक्चुअली द टिंडल बाइबल, विलियम टिंडल की बाइबल है। तो इन स्कॉलरली लोगों ने दिन और रात अपनी जानों को जोखिम में डाला और ये ट्रांसलेशन निकाली, जिसके द्वारा ये बाइबलें आपके और मेरे हाथ में आई हैं। इन लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी। आप शायद इनके नाम भी नहीं जानते आज। आपने शायद कभी इन लोगों के खून को, बलिदान को अप्रिशिएट भी नहीं किया होगा। इनकी कुर्बानी से ये बाइबल हमारे हाथ में पहुंची है। इनको जिंदा जला दिया गया। जब ये वर्जन आया 1611 किंग जेम्स वर्जन, रोमन कैथोलिक चर्च ने अपना डुरेन ट्रांसलेशन निकाली ताकि इसके संग कंपीट किया जाए। और आपको मालूम, उन्होंने एक मूव चलाया जिसे आप बोलते हैं निहिल ऑब्स्टेट। निहिल ऑब्स्टेट, निहिल ऑब्स्टेट एक स्टैंप लगाते थे। वो किताबें पढ़ते थे, जिस किताब के अंदर रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ तलीम होती थी, उस किताब पे वो स्टैंप नहीं लगती थी। निहिल ऑब्स्टेट की स्टैंप नहीं लगती थी। जिन किताबों पे स्टैंप लगती थी, रोमन कैथोलिक चर्च के लोग वही किताब पढ़ सकते थे। निहिल ऑब्स्टेट, वो मोहर लगी है कि ये किताब आपके लिए पढ़नी ज़रूरी है, यही पढ़ो और दूसरी नहीं पढ़नी। जैसे आज पादरी लोग कहते हैं ना जी, फलाने दी बंदगी च नहीं जाना। जितने गलत होंगे ना लोग, झूठी शिक्षा देने वाले, झूठी तालीम देने वाले, वो कहाँ से पकड़े जाएंगे? वो अपने श्रद्धालुओं को ये सिखाते हैं और किसी दी बंदगी च नहीं जाना। आपने इधर ही डेरे में आना हमारे पास। अगर आपको बंदगी करनी है तो पापा जी की सीडी चला लो, बस उनके गीत गाओ, वही गीत लगाने हैं और किसी से वचन नहीं सुनना। ये कल्ट की निशानी होती है, फॉल्स रिलीजन की निशानी होती है, क्योंकि वो एक ही बंदे के इर्द गिर्द घूमता है। एक बंदा अपने इर्द गिर्द एक कल्ट, एक धर्म खड़ा करता है और लोग सारे उसके इर्द गिर्द रैली करते हैं। वहाँ पे कलाम नहीं होता यहोवा का। अगर यहोवा का सच्चा कलाम होगा तो लोग उस पास्टर के जीवन के ऊपर सवाल उठाएंगे, उसे कहेंगे आपका जीवन कलाम से मेल नहीं खाता, आपका जीवन वचन के अनुसार नहीं है। तो लोग प्रश्न करेंगे, तो कलाम नहीं होगा उधर उसी पास्टर की पर्सनैलिटी के विषय में सिखाया जाएगा और उस पास्टर की पर्सनैलिटी को इतना बड़ा बना के पेश किया जाएगा कि सारे लोग उस पास्टर की पर्सनैलिटी की छांव में खड़े होंगे। क्रूस नहीं होगा, क्रूस पे बहाया लहू नहीं होगा, सकरा मार्ग नहीं होगा, तंग फाटक नहीं होगा, खुद इनकारी का जीवन नहीं होगा, पवित्रताई, धार्मिकता, सच्चाई पे चलने वाला पथ नहीं होगा। वहाँ पे झूठे चमत्कार, झूठे मौजे, झूठी चंगाइयाँ होंगी नहीं उस लेवल की जिस लेवल का वहाँ पे पब्लिसिटी की जाएगी। ये निशानियाँ हैं जो मैं आज आपको बता रहा हूँ डार्क किंगडम की और यहोवा के सच्चे कलाम की। ये अंत के दिनों में आपको यहोवा का ये सच्चा कलाम, सच्चा वचन जानना अति अति आवश्यक है। इस कलाम के संग जुड़िए, यीशु मसीह के संग जुड़िए। पादरियों के उपासक मत बनिए, सेलिब्रिटी पास्टर मत पालिए, बहुत धोखा खाएंगे आप, बहुत धोखा खाएंगे। यीशु मसीह को छोड़ कोई और हमारा हीरो नहीं है। ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु मसीह की ओर तकते रहो, केवल उसकी ओर आंख लगाइए।
और उसके कलाम से लिपट जाइए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। हम फिर इस स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल इन जीसस नेम, आमेन।